Assalamu alaikum, dear students. As you know, we were in last lecture, we were discussing the concept of interference, and we have discussed the phenomena of superposition of waves, and you know that this interference that results because of superimposition of waves. So we say we we have a little bit revision or review of these concepts. I will revise this and principle of superimposition of waves and interference. As I discussed conditions, they are in lecture third of the wave optics, and you can watch it on YouTube. And now today we are going to discuss the concept of interference. इसमें हमें Young's double slit experiment and basic theory of interference we are going to discuss. This is very important topic. And you know that interference is the phenomena of redistribution of light energy, and when the two light waves from coherent sources superimpose, this result is the formation of bright and dark bands on the screen. You know that, for example, if you have a monochromatic source of light, let's suppose we have one slit here and another two slits are here at equal distance from this slit as source slit. This is called source slit S. Is source slit say S1 and S2. They are the two slits which are equal distance from S1 and S2. S1 and S2 से equal distance पर है. These are source slits S1 and S2. Now यहाँ से और यहाँ पर हमें स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर हम देखते हैं व्हाट विल. अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. यू नो इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन. तो यंग ने थॉमसन यंग इन 1801 इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिस इससे दो चीज इससे क्लियर होते हैं. एक तो इससे वेव फिनोमेना, it gives the proof of wave nature of light. It proves the wave nature of light, this interference. It proves that light is of wave nature. And दूसरा इसमें जो फिनोमेना है that is the redistribution of light energy. जब दो वेव्स सुपर इम्पोज हो जाते हैं लाइट वेव्स, तो जहां पर ये सुपर इम्पोज होते हैं, मैंने कल सुपर इम्पोशन में बताया था सुपर इम्पोशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ये डिस्ट्रक्टिव भी. जिसने नहीं देखा है वो पहले वो सुपर इम्पोशन देखिए ताकि इस लेक्चर को इसको समझने में आसानी हो और इजीली ये इसको समझ सकता है. लेकिन सुपर इम्पोशन में क्या देखो, लाइट वेव्स जब मिल जाते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये या तो ये कॉन्स्ट्रक्टली सुपर इम्पोज होते हैं. अगर ये जिस जगह पर ये कॉन्स्ट्रक्टली सुपर इम्पोज होते हैं वहां पर ब्राइट बैंड बन जाता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लाइट की एनर्जी बढ़ जाती है. जहाँ जहाँ ये डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज होती है वहाँ पर लाइट की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, या हम ये कहेंगे जीरो हो जाती है. So this redistribution of light energy by the superimposition of two light waves from two coherent sources, which results in the formation of alternate bright and dark bands on the screen, this is called interference. And this interference was explained by Thomson Young in 1801 by experiment that's called Young's double slit experiment. So Young's double slit experiment में जो इसका प्रोसीजर है, इसने एक स्लिट लिया जिस स्लिट पर इसने एक लाइट डाली. फॉर एग्जांपल कोई भी लाइट एक सोर्स, तो यू नो लाइट इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव. हम आज कहते हैं इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैवल्स and you know transverse wave travels in the form of crustes and trophus. Here we will solid line is represented crustes and dotted line represents trophus. So this light travels in the form of crustes and troughs, solid and dotted lines, and this is a crust. अब ये जो वेव फ्रंट, वी नो इससे पहले हमने जब फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट की पढ़ी
What's wavefront? It's the loops of particles of medium which are vibrating in the same phase and lie at the same surface. और Huygens principle में हमने पढ़ा था light travels in the form of wavefronts. So wavefront is the loops of particles which are vibrating in same phase and lie at the same surface. So this is the wavefront. This solid line, it is the wavefront जिसको हम crust wavefront कहते हैं. अब इस crust से यहाँ पर इससे एक secondary wavefront. Each point on this it is the source of new disturbance. जहाँ से source of new disturbance, it's the source of new disturbance. तो यहाँ से एक secondary wavefront निकलेगा जो S2 में जाएगा और यहाँ से एक secondary wavelength same wavefront से secondary wavefront निकलेगा जो S1 में जाएगा. तो इस तरह जो wavefront S2 में, तो फिर से यहाँ पर ये source ये बन गया secondary wavelength का. इस तरह यहाँ पर solid line और dotted line, these represents crusts and troughs. So this is trough and this is crust, this is trough and this is crust. तो इस तरह crusts and troughs. इसी तरह इसमें से भी फिर solid line crust, dotted line trough, solid line crust, dotted line trough and solid line crust. तो इस तरह ये यहाँ से भी वेव्स निकले यहाँ से. अब यहाँ पर इन फेज जहाँ पर वेव सुपर इम्पोज हो गई इन फेज, दैट्स क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ. हम देखेंगे यहाँ पर क्रस्ट सोलिड लाइन फॉल्स ऑन सोलिड लाइन एंड dotted line falls on dotted line. Let's suppose this is dotted line, it falls on dotted line. So solid line and solid line, dotted line and dotted line. Where they combine, this is the इसी हिसाब से यहाँ पर बन जाएगा ब्राइट बैंड. This is B. एंड जहाँ पर solid line और dotted line, यानी यहाँ पर solid line और dotted line मिले तो इस यहाँ पर बन जाएगा डार्क बैंड. फिर यहाँ पर फिर solid line and dotted line यहाँ पर बन जाएगा ब्राइट बैंड. इसी तरह ये आप usually you will take a divider और उसे आप वो circles बना सकते हैं. For example, you will take this S1 as a center, draw an arc of radius R1, draw here solid line. So now increase the radius, draw here dotted arc, draw here dotted arc, increase the radius, draw solid arc, draw solid arc. तो इस हिसाब से अगर आप draw करोगे तो you will see that there are the points where the solid line falls on solid line, that's crust falls on crust and trough falls on trough. and इसी point जहाँ पर crust और crust मिल जाते हैं और ट्रफ मिल जाते हैं, उसी पॉइंट से लेकर अगर हम स्क्रीन तक स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो उस पॉइंट उस जगह पर बन जाएगा ब्राइट लाइन. जहाँ पर solid line के साथ dotted line के साथ मिल जाते हैं, that's crust falls on trough falls on crust. वहाँ पर तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होती है. वहाँ पर स्क्रीन के उसी हिसाब से अगर हम स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो जिस पॉइंट पर स्क्रीन पर जो पॉइंट डिटेक्ट करेगा उस जगह पर डार्क बैंड बन जाएगा. तो this is Thomson, this is called Young's double slit experiment. तो Young's double slit experiment हम क्या कहते हैं, हम एक पहले स्लिट S लेते हैं जिसको हम सोरस स्लिट कहते हैं. इस सोरस स्लिट से इक्वल दूरी पर हम लेते हैं S1 and S2. The S1 and S2 should be at equal distance from the source S. तो जब ये सोरस से लाइट वेव्स निकलती हैं तो एक वेव फ्रंट जब S1 और S2 पर पहुंचे तो देयर इज द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. तो इस डिवीजन इसी वेव फ्रंट से सोर्स S1 और S2 से लाइट निकलती है तो दे फॉर्म द मोनोक्रोमेटिक, दे फॉर्म द कोहेरेंट सोर्सेज. यू नो इंटरफ्रेंस को डिटरमाइन करने के लिए, एक इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने के लिए, एक नीट एंड क्लीन इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने के लिए हमारे पास जरूरी होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स. मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो सोर्स सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं, जो लाइट वेव सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए. ये इनकी फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या तो इन फेज होनी चाहिए. और दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेरेंट वेव्स. कोहेरेंट वेव्स की यही प्रॉपर्टी होती है, दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, they should have same wavelength, they should either in phase or should have a constant phase difference, they should be from a single parent source.
तो इस तरह एंड इसके बनाने का तरीका, कोहेरेंट सोर्स के बनाने का तरीका ये है, दे आर ईदर फॉर्मड बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दे आर फॉर्मड बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से, जो एक ही वेव फ्रंट से वेव निकलती है S1 और S2 से, तो ये मोनोक्रोमेटिक वेव आगे जाके फिर से स्लिट S1 से S2 से निकलती है, तो ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं। जहां पर ये कॉन्स्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो जाते हैं उसी हिसाब से स्क्रीन पर बन जाता है ब्राइट बैंड। जहां पर ये डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज होते हैं उसी हिसाब से स्क्रीन पर बन जाता है डार्क बैंड। और दिस इज हाउ Young explained the phenomena of superimposition, phenomena of interference of light. This is theoretically and experimentally how we can explain the interference of light. So what is the interference of light? It is the phenomena of redistribution of light energy due to the superimposition of two monochromatic or coherent light waves from two coherent sources, so as to form the alternate bright and dark bands on the screen. This is called the interference of light. So this interference, it can be mathematically, we can mathematically check the interference of, we can mathematically calculate what are the necessary conditions for the constructive and destructive superimposition, for the constructive and destructive interference, or for the formation of bright and dark bands. This is very important. So ये जो experimental था, this was experimental. Now we will go to the mathematical. That's called basic theory of interference in mathematics. So we will go to the basic theory of interference. So basic theory of interference में हम क्या कहते हैं, हम दो वेव्स, ऐसे ही दो वेव्स लेते हैं दो स्लिट से. फॉर एग्जांपल वी हैव स्लिट, वी नो दिस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स. यहाँ से एक वेव निकलती है इस स्लिट से, तो एक वेव निकलती है इस स्लिट से, तो पॉइंट P पर ये मीट आउट हो जाते हैं. सो द ईदर द पॉइंट P विल बी द पॉइंट P, या तो ये ब्राइट बैंड होगा या तो ये पॉइंट P डार्क बैंड होगा. इधर दिस पॉइंट P इज द ब्राइट बैंड और इट इज द डार्क बैंड. सो हमें देखना है कि पॉइंट P इट इज ब्राइट और डार्क बैंड. नाउ देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या करने की जरूरत है. तो हम दो वेव्स देते हैं. लेट अस सपोज यहाँ से y1 निकलती है वेव और यहाँ से y1 निकलते हैं, यहाँ से y2. सो y1 वी विल टेक, लेट सपोज y1 इज इक्वल टू a sin omega t, a sin omega t. This is a sin omega t, and y2 is equal to a sin omega t plus phi. So हमने दो वेव्स लिए यहाँ पर, जो यही दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं. दिस इज वेव y1 एंड दिस इज वेव y2. सो ये दो वेव्स यहाँ पर सुपर इम्पोज होती हैं. जब ये सुपर इम्पोज होती है तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी दैट विल बी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. ऑन सुपर इम्पोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. तो जब सुपर इम्पोजिशन हम देखेंगे तो y जो रिजल्टेंट वेव y आएगी दैट विल बी a sin ओमेगा t प्लस b, इसको हम b भी कहेंगे, b लेट सपोज b sin omega t plus phi. These waves are having constant phase difference. तो constant phase difference जो इन दो waves में, that is phi is the constant phase difference. So इसका मतलब जो y होगा that will be a sin omega t plus b sin a plus b, that is b sin a omega t cos phi plus cos omega t sin phi. तो इस तरह y is equal to a sin omega t plus b sin omega t cos phi plus b cos omega t sin phi. तो यहाँ पर y is equal to a plus b cos phi sin of omega t. यहाँ पर sin of omega t इसमें भी था, इसमें भी, a plus b cos phi plus b cos omega t sin phi. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट में यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा कुछ. सो ये जो a plus b cos phi है, a plus I will put a plus b cos phi
इज इक्वल टू r cos थीटा, इसको मैं लिखूंगा r cos थीटा, r cos theta. Let's suppose this is r cos theta and b sin phi is equal to r sin theta. मैंने ये सबस्टिट्यूट किया है a plus b cos phi. Let us suppose it is r cos theta and b sin phi is r sin theta. तो इन दो इक्वेशंस को मैं, तो ये बन जाएगा y is equal to ये r cos थीटा sin ओमेगा t प्लस r sin थीटा cos ओमेगा t. अब ये बन गया r, तो कॉमन cos a sin b sin a cos b sin, सो sin ओमेगा t प्लस phi बन जाएगा. सो y इज इक्वल टू r कॉमन sin a cos b cos a sin b, तो ये बन जाएगा sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा. अब यहां पर ये इट मींस दैट जब हमने सुपर इम्पोजिशन की दो वेव्स की, a sin ओमेगा t और b sin ओमेगा t प्लस phi, जो रिजल्टेंट वेव a का एम्पलीट्यूड था a, y1 था, y2 का एम्पलीट्यूड था b, तो जो रिजल्टेंट वेव है इसका एम्पलीट्यूड बन गया r. और ये साइनोसाइडल वेव थी, ये भी साइनोसाइडल थी, दिस वेरिएशन, और ये भी, यानी ये भी हार्मोनिक वेव थी, ये भी हार्मोनिक वेव, अब ये भी हार्मोनिक वेव. इट मींस नेचर ऑफ द वेव डज नॉट चेंज अपॉन सुपर इम्पोजिशन. जब दो वेव्स की सुपर इम्पोजिशन होती है तो नेचर ऑफ वेव, इफ दे आर साइनोसाइडल दे रिमेन द साइनो, इफ दे आर हार्मोनिक दे रिमेन द हार्मोनिक वेव्स, दे रिमेन द पीरियोडिक वेव्स. सो ओनली देयर इज चेंज इन एम्पलीट्यूड, और इस एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस आल्सो देयर इज चेंज इन फेज, दैट्स फाई. पहले ये इसमें थीटा था, इसमें फाई था फेज, इसमें थीटा हुआ फेज. सो व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, तो देयर इज टू चेंजेस हो रही है, एक तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, दूसरा इसका फेज चेंज हो रहा है. बाकी जो हार्मोनिक है, जो इसकी पीरियोडिसिटी है वो सेम रहती है. तो ओमेगा टी दैट रिमेन्स सेम, ओनली थीटा देयर इज थीटा एंड द एम्पलीट्यूड जो आर का चेंज होना है. So amplitude, energy and intensity that is associated with amplitude. जब resultant wave का amplitude r हुआ तो इसका मतलब है when two waves superimpose, so जब amplitude change हुआ तो wave की intensity और energy change हुई. तो अब हमें ये देखना है कि वेव की एम्पलीट्यूड, जब ये r इंटेंसिटी है, ये कब डिक्रीज होगी कब इंक्रीज, क्योंकि हमें पता है सुपर इम्पोजिशन में क्या होता है, कभी कभार वेव इंक्रीज इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, ब्राइट बैंड में वेव की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता है, तो डार्क बैंड में वेव की एनर्जी डिक्रीज होती है. तो इसका मतलब है अल्टरनेटली ये इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं. तो वो हमें एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है. सो वो एम्पलीट्यूड हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम इन दो इक्वेशंस, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, इनको हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे. तो जब हम इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो ये बन जाएगा a प्लस बी कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये है 1 कॉस स्क्वायर प्लस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, और तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई 2ab cos फाई प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. तो r स्क्वायर बन गया है हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई. तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई. दिस इज द एम्पलीट्यूड. और इस एम्पलीट्यूड पे भी हम अब क्या कर सकते हैं, हम इस पे भी ये देख सकते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. ज्यादा अच्छा है कि हम इंटेंसिटी से ही कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव. तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस व्हाट इज r, इट इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. वी नो द स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. नाउ इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर. सो I रिजल्टेंट वेव का
intensity, that is equal to k times r square. So r square is equal to IR divided by k. जो intensity of that square of amplitude of resultant wave, that is intensity divided by k. इसी तरह ये है amplitude of resultant. इसी तरह एम्पलीट्यूड ऑफ पहली जो वेव थी इसका एम्पलीट्यूड था a, तो हम IA इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सुपर इम्पोजिंग वेव, फर्स्ट वेव, तो दैट विल बी IA डिवाइड बाय k, एंड इंटेंसिटी ऑफ दैट्स r a square and b square will be IB divided by k. IB divided by k. या हम ये कहेंगे कि r, it implies that r is equal to under root of IR divided by k. यहाँ पर हम ये imply a is equal to under root of IA divided by k, and it implies that b is equal to under root of IB divided by k. तो यहाँ पर अगर हम एम्पलीट्यूड की जगह इंटेंसिटी देंगे तो r स्क्वायर की जगह आएगा r स्क्वायर की जगह IR डिवाइड बाय k. तो यहाँ इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, यानी इस एम्पलीट्यूड को हम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी आप कन्वर्ट करेंगे, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सो हमने k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज किया, तो IR इज इक्वल टू k टाइम्स r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू IR डिवाइड बाय k, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IR डिवाइड बाय k, a स्क्वायर इज I डिवाइड बाय k एंड b स्क्वायर इज IB डिवाइड बाय k. तो r स्क्वायर की जगह IR डिवाइड बाय k, IR डिवाइड बाय k is equal to IA divided by k plus IB divided by k plus under root of 2 under root a. अब a ये अभी तक स्क्वायर थी, अब a आएगा. a is equal to under root of IA divided by k under root of IB divided by k cos of phi. अब देखो ये k और ये k रूट के हो गए, k ये कैंसिल हो जाएंगे. सो रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी है दैट इज IA प्लस IB प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ IA अंडर रूट ऑफ IB cos ऑफ phi. ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट सुपर इम्पोज्ड वेव. अब इस इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड से हम दोनों से इस चीज को देख लेंगे कि एम्पलीट्यूड जब वेव सुपर इम्पोज होते हैं तो एम्पलीट्यूड को क्या होता है, और उसी हिसाब से हम देखेंगे इंटेंसिटी को क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टिव में क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है. तो यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर ध्यान रखो, आप ध्यान रखने की जरूरत भी है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस cos phi, इफ द वेव्स मीट इन फेज, if the waves meet in phase, अगर ये दो waves in phase मिल रही है, when that means in phase means phi is 0. when phi is 0, 2 pi 0, 2 pi 4 pi 6 pi, that's because 0, 2 pi 4 pi even multiply, or we can say phi is equal to 2 into n pi, n into 2 pi, n into 2 pi. When phi is equal to n into 2 pi, तब तो cos phi, that's cos phi, when cos phi is equal to 1, cos phi तभी 1 हो सकता है when phi is equal to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, and या हम कहेंगे phi is equal to n into 2 pi, तब cos phi 1 होगा. अगर ये cos phi 1 होगा तो इसका मतलब है अगर ये वाले एंगल होंगे, ये वाले एंगल यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंगल हुआ तो cos phi का वैल्यू 1 होगा, यानी दो वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगे कॉन्स्टेंटली. तब ये वाली टर्म बन जाएगी एम्पलीट्यूड वाली टर्म, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi की जगह 1, यानी r स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर. तो ये स्क्वायर r इज इक्वल टू a प्लस b. इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो दो वेव्स के एम्पलीट्यूड का सम हो गया. यानी अगर पहली वेव जो हम वेव a का एम्पलीट्यूड ये था, a पहली वेव y1 था और y2 का एम्पलीट्यूड b था, तो a और b मिलके r का जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड वो a प्लस b बन जाएगा.
अगर ए पहली वेव का ए था, दूसरी वेव का भी ए था, तो 2a बन गया, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन गया ट्वाइस। जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन गया ट्वाइस, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बन जाएगी और एनर्जी 16 टाइम्स। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड, दैट इज द, so this is called a constructive superimposition. So constructive superimposition के लिए पहली कंडीशन है phi should be n times 2 pi, n times integral multiple of 2 pi, ये है constructive superimposition। तो इसी तरह जब cos phi यहाँ पर 1 होगा, when cos phi is 1, तो ये बन जाएगा ia plus ib, ये वाली टर्म जो है ये प्लस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फैक्टर, ये इंटरफेरेंस फैक्टर, या दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फैक्टर इन एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फैक्टर इन इंटेंसिटी। ये अंडर रूट ऑफ आई आई बी ट्वाइस अंडर रूट इंटरफेरेंस फैक्टर इन इंटेंसिटी, ये प्लस हो जाएगा अगर cos फाई का वैल्यू +1 हुआ। अगर यहाँ cos फाई का वैल्यू प्लस, तो एम्पलीट्यूड में 2ab ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव, जो सुपर इम्पोज्ड वेव, उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, प्लस ये 2 + 2ab हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को प्लस 2ab हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ia और ib को ट्वाइस अंडर रूट ia ib ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, या ये कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड। अगर अब यही कंडीशन ऐसे हुई, अगर आउट ऑफ फेज वेव्स मिल गए, यानी जो अब cos फाई, अगर ये जो cos फाई है, अगर ये cos फाई -1 आ गया, यानी तो एंगल किस एंगल पर, फाई पाई पर हो जाएगा 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऑड इंटीग्रल, या फाई इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, 0 दे दोगे तो 1 पाई बन जाएगा। अगर ये वाले एंगल आ गए, ऑड इंटीग्रल मल्टीप्लाई पाई एंगल आ गए, तो उस पर तो cos फाई -1 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड जो हो गया वो बन जाएगा r स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 2ab -1 तो -2ab बन जाएगा, -2ab, तो r स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ये और ये कैंसिल, r विल बी a माइनस बी। तो इसका मतलब है अब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, तो ये a माइनस बी हो गया। तो इसका मतलब है इफ दे मीट आउट ऑफ फेज, अगर ये फेज डिफरेंस हुई, एंगल इन फेज पाई 3 पाई 5 पाई, तो वेव्स आउट ऑफ फेज मिल जाएगी, या 2n प्लस 1 फाई पर वेव्स आउट ऑफ फेज मिल जाएगी। जब वेव्स आउट ऑफ फेज मिल गई, तो डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन होगी, जो रिजल्टेंट होगा वो a माइनस बी होगा। जैसे कॉन्स्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट सुपर एम्पलीट्यूड होगा a प्लस बी, यहाँ पर रिजल्टेंट a माइनस बी हो जाएगा। तो जब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a माइनस बी हुआ, तो अगर a और b बराबर था, तो a माइनस a यानी 0 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड जब 0 हुआ, तो इंटेंसिटी भी 0 होगी, और वहां पर कंप्लीटली डार्क बैंड हो जाएगा, वहां पर लाइट 0 हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा फर्क था, तो लेकिन डिक्रीज तो होगा, वो तो ब्राइट के हिसाब से वो तो डार्क दिखेगा। लेकिन इसीलिए अगर आप सुपर इम्पोजिशन एक बेस्ट पैटर्न इंटरफेरेंस का देखना है, तो इसके लिए जो सुपर इम्पोजिंग वेव्स हैं, इनका एम्पलीट्यूड बराबर रखना है, ताकि जब ये कॉन्स्ट्रक्टिवली मिल जाएंगे तो ट्वाइस एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इंटेंसिटी 4 टाइम्स और एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। और जब ये डिस्ट्रक्टिव मिल जाएंगे, तो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड्स को कैंसिल करके इंटेंसिटी 0 और एनर्जी 0 बनाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन सी। सो इसका मतलब है, ये मैंने आज ये हम समझा रहे हैं कि फेज डिफरेंस, अगर फेज पाई 3 पाई 5 पाई या 2n प्लस 1 पाई जनरली, तो वेव्स को डिस्ट्रक्टिव मिल जाएंगे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड। और अगर वेव्स कॉन्स्ट्रक्टिव मिल जाएंगे, cos फाई +1 आ जाता है, तो वो तो 2 into n पाई पर आता है, या n into 2 पाई पर आता है। अगर n into 2 पाई फेज डिफरेंस हुई, तो वेव्स इन फेज मिल जाएंगे और वहां पर डायरेक्ट ब्राइट बैंड बन जाएंगे। तो दिस इज हाउ। और इंटेंसिटी में ये फैक्टर ऐड हो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इंटेंसिटी में, तो -1 पर ये फैक्टर माइनस हो जाएगा, और +1 cos फाई +1 पर ये फैक्टर प्लस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फैक्टर। और इस इंटरफेरेंस फैक्टर के ऐड होने से कॉन्स्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन यानी ब्राइट बैंड बन जाते हैं। इस इंटरफेरेंस फैक्टर के सब्ट्रैक्ट होने से डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन यानी डार्क बैंड बन जाते हैं। तो दिस इज हाउ। नाउ व्हाट आर द, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव एंड। इसमें नेसेसरी कंडीशंस अब आपने देखे, पहली जो नेसेसरी कंडीशंस हैं,
आप ये भी इंटरफेरेंस फैक्टर जो होता है ब्राइट बैंड में वो तो ऐड होता है, जो डार्क बैंड में होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है, phi should be n to n plus 1 pi for the destructive superposition for the dark band, and phi should be n into 2 pi for the bright band। तो इनको हम आगे के लेक्चर में, जो ये क्वेश्चन यूजुअली बोर्ड या एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। तो आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम सिर्फ यही कंडीशंस एक्सप्लेन करेंगे कि नेसेसरी कंडीशंस कैसे हम निकालेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और अगर इसमें कुछ रह भी गया है तो रिपीटेडली आप देख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, तो इंशाल्लाह यू विल गेट दिस क्वेश्चन। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस। अभी हमें इसमें 2-4 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो दैट वी विल डिस्कस। सो you are supposed to subscribe the channel and stay connected so that you can watch the upcoming videos. Thank you.